lecture we'll discuss imperfections in solids, that is defects in solids. So if you really love my videos, please do share and subscribe my channel, that's Camlog. So let us start the topic, that is discussion of imperfections in solids, that is we'll discuss defects in solids. तो पहले हम बात करेंगे कि डिफेक्ट क्या होता है. व्हाट डू वी मीन बाय डिफेक्ट? डिफेक्ट इन अ सॉलिड. व्हाट डू वी मीन बाय डिफेक्ट इन अ सॉलिड? व्हाट इज अ डिफेक्ट? सो बेसिकली डिफेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सॉलिड कंसिडर करूँगा. लेट इट इज अ सॉलिड ऑफ आयोनिक टाइप in which you have A type of ions, A plus, B minus, A plus, B minus. This is regular repeated arrangement of constituent particles. The thing that I am drawing over here, it is regular repeated arrangement of constituent particles, isn't it? So this is an ionic crystal in which I have regular repeated arrangement of constituent particles. Similarly, I can have B minus over here, A plus over here, B minus over here, A plus over here. तो see over here, you can see over here, this is a crystal. ये मेरे पास एक ionic crystal है. And which you have cations and anions. What is A plus? It's a cation. What is B minus? It's anion. So in this case, you will see this is a perfect arrangement of constituent particles. यहाँ पे आप देख सकते हो, this is perfect arrangement of constituent particles. Means there is alternate arrangement of constituent particles in this solid. So अगर इसमें defect होगा तो क्या होगा? तो हम डिफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो, ये जो मेरे पास सॉलिड है, अगर इसमें किसी भी वजह से कोई एटम या कोई आयन मिस हुआ, फॉर एग्जांपल ये मेरा नॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अब इसमें डिफेक्ट होता है. डिफेक्ट होता है मतलब इसमें से कुछ आयन मिसिंग है. फॉर एग्जांपल यहाँ से ए प्लस आयन मिस है, फॉर एग्जांपल यहाँ से बी माइनस आयन मिस है. सो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जो हमारा रेगुलर रिपीटेड अरेंजमेंट था, इसमें इरेगुलरिटी आ गई. So this irregularity in the regular repeated arrangement of constituent particles of a crystalline solid, this is known as defect. This is called defect. That is what is irregularity in the arrangement of constituent particles. So we can define this defect as irregularity in the repeated arrangement of constituent particles in a crystal. This is known as imperfection or it is known as defect. तो इसी चीज को हम imperfection कहते हैं और इसी चीज को हम defect भी कहते हैं. This is also known as defect. So this is what is meant by defect. अब हम देखेंगे defects जो solids में आते हैं. What are the types of the defects that take place? तो इनकी classification देखेंगे. Defects की classification पहले discuss करेंगे. So if we go on classifying these defects, then what type of defects we will be having. So first हमारे पास जो आएगा, that will be line defect. This has not been included in your syllabus. तो line defect आपको पढ़ना नहीं है, but थोड़ा सा मैं इसका आइडिया दूंगा. उसके बाद हमारे पास आता है point defects. Point defects have been included in our syllabus. तो point defects को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है. तो व्हाट आर लाइन डिफेक्ट्स? तो लाइन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे. देखो मेरे पास ये वाला जो constituent particles in a solid है, दिस इज अ रेगुलर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड. यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे एक लाइन में सारे एटम्स मिस हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली लाइन है, तो इस लाइन में ये वाला constituent पार्टिकल मिस है, ये भी मिस है, ये भी मिस है, ये भी मिस है. मीन्स ऑल द constituent particles they are missing along a line. मतलब एक ही लाइन में सारे constituent particles. यू मे कंसिडर दिस लाइन. तो इस लाइन में आप देख सकते हो कि सारे constituent particles जो हैं they are missing. So such type of defect is known as line defect. So what is line defect? If the constituent particles in a perfect crystalline solid are missing along one particular line, then that defect is known as line defect. But it has not been included in the syllabus. Therefore इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए. तो आई होप कि आपको आइडिया मिल गया कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है, isn't it?
सो उसके बाद हमारे पास जो डिफेक्ट आते हैं दे आर पॉइंट डिफेक्ट्स विच आर इन आवर सिलेबस। तो पॉइंट डिफेक्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे इस सॉलिड को बनाऊंगा। आई हैव बी माइनस ओवर हियर, बी माइनस ओवर हियर, बी माइनस ओवर हियर, बी माइनस ओवर हियर। नाउ सी पॉइंट डिफेक्ट्स की अगर बात करेंगे, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम दिस अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन नीट एंड जेईई एग्जाम। So this is very very important. So they have been classified into two categories. One is known as stoichiometric defects, and the second is known as non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects. तो बेसिकली हमें इन्हीं को डिस्कस करना है। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। अगर इनकी बात करेंगे स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की, तो ऐसे कौन से डिफेक्ट्स हैं जिनको हम स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहेंगे। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड remains same before and after defect. तो केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस केमिकल कंपोजिशन, आई विल लेट यू नो लिटिल लेटर। तो व्हाट आर नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इन विच केमिकल कंपोजिशन जो यहाँ पे होगी, केमिकल कंपोजिशन दैट विल नॉट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट is not equal to before defect is not equal to chemical composition after defect. तो इनका डिटेल में डिस्कस करेंगे। विल कम टू नो व्हाट डू यू मीन बाय दिस केमिकल कंपोजिशन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहले इन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को, मतलब स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, तो मैंने क्या कहा, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जिनमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहते हैं। केमिकल कंपोजिशन सेम मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ क्रिस्टल ऑफ द टाइप A प्लस एंड B माइनस, मतलब इट इज मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, दिस इज एन आयोनिक क्रिस्टल। तो जितने इसमें नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस बिफोर डिफेक्ट होंगे, बिफोर डिफेक्ट जितना रेशियो नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस होगा, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आफ्टर डिफेक्ट, दैट इज नोन एज केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा इस पे मेरे पास 6A प्लस आयन्स थे और 6B माइनस आयन्स थे, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ A प्लस एंड B माइनस आयन्स बिफोर डिफेक्ट, इट इज 6:6, दैट मीन्स 1:1, इजंट इट, 1:1। तो आफ्टर डिफेक्ट की बात करेंगे, मान लो कि इसमें डिफेक्ट हुआ, हमारे पास 2 A प्लस आयन्स मिस हो गए, मतलब हमारे पास 4 A प्लस आयन्स रह गए, एंड 2 B माइनस आयन्स आर मिसिंग, मतलब हमारे पास 4 B माइनस आयन्स रह गए। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, so it's again 4 divided by 4. What is the ratio? Ratio is 1:1. मतलब जो केमिकल कंपोजिशन है that remains same. The ratio of cation to anion before and after defect that remains same. That is known as chemical composition. ना डिस्कस करेंगे, इसमें हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। एक आता है हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। सेकंड वन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस फर्स्ट डिस्कस शॉर्ट की डिफेक्ट। बोथ ऑफ दीज आर स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड दे आर पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। शॉर्ट की डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो लेट मी ड्रा अ क्रिस्टल ओवर हियर, उससे हमें पूरी विजुअलाइजेशन आएगी कि शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है। तो मैं कैटाइन और एनाइन का क्रिस्टल बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे A plus this is cation, B minus this is anion, A plus this is cation, B minus this is anion। तो यहाँ पे B minus बिकॉज रेगुलर रिपीटेड अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे A plus, यहाँ पे B minus, यहाँ पे A plus, यहाँ पे A plus, फिर B minus, फिर A plus, फिर B minus। तो सिमिलरली और हियर आई कैन हैव B minus, फिर A plus, फिर B minus, फिर A plus। सो दिस इज ए क्रिस्टल, ये मेरे पास क्रिस्टल है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को मैं यहाँ पे बॉन्ड्स भी बनाऊंगा साथ साथ, बिकॉज एटम्स आर टचिंग ईच अदर। हमने पहले ही सॉलिड स्टेट में कहा था कि जो एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर ट्रीटेड एज स्फीयर्स एंड दे टच ईच अदर, इजंट इट, जब पैकिंग डिस्कस कर रहे थे।
तो मैंने यहाँ पे इनकी एक स्ट्रक्चर बनाई, एक क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर बनाई। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, हमें डिस्कस करना है अगर इसमें डिफेक्ट होगा। सो दिस इज अ नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस। तो अगर इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ cations and anions. What are cations? A plus, and anions. What are anions? B minus are missing from the lattice side. तो जो हमारे पास क्रिस्टल लाइट्स है उससे हमें इक्वल नंबर ऑफ cations and anions आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। तो ये मेरे पास लैटिस साइड है, तो इसमें अगर शॉर्ट की डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ cations and anions विल बी मिसिंग। मतलब अगर इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होगा तो बता, पहले मेरे पास कितने ए प्लस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई हैव 8 ए प्लस आयन्स। So what? How many B minus ions? There are 8 B minus ions. So what is the ratio? Ratio is 1:1. Stoichiometric ratio. Molar ratio is 1:1. तो अगर डिफेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल अगर डिफेक्ट हुआ यहाँ पे मेरे पास A प्लस आयन था, उसके बाद B माइनस था, उसके बाद A प्लस था, उसके बाद B माइनस था, यहाँ पे B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, तो उसके बाद यहाँ पे A प्लस B माइनस, यहाँ पे A प्लस B माइनस, तो उसके बाद यहाँ पे B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। सो यहाँ पे क्या हुआ? शॉर्ट की डिफेक्ट हुआ। भाई शॉर्ट की डिफेक्ट आई मीन कि अगर एक कैटाइन यहाँ पे मिस हुआ तो एक एनाइन को भी मिस होना है। अगर दो कैटाइन्स मिस हुई, लेट अस से कि एक और एनाइन मिस हुआ तो एक और कैटाइन को मिस होना है। तो दिस इज द शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में जितने कैटाइन्स मिस होंगे फ्रॉम द लैटिस साइड उतने ही एनाइन्स मिस होंगे फ्रॉम द लैटिस साइड। तो अगर मैं यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर आफ्टर डिफेक्ट, दिस इज आफ्टर डिफेक्ट। अगर मैं आफ्टर डिफेक्ट की बात करूँगा, मेरे पास कितने ए प्लस आयन है? मेरे पास 6 ए प्लस आयन है। एंड हाउ मेनी बी माइनस आयन? बी माइनस आयन आर 6। सो व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज 6:6। 6:6 बोले तो 1:1। अगर 1:1 रेशियो है मतलब जो केमिकल कंपोजिशन बिफोर एंड डिफेक्ट है दैट इज इक्वल टू द केमिकल कंपोजिशन आफ्टर डिफेक्ट है। इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? Schottky defect is that type of defect observed in ionic compounds in which equal number of cations and anions are missing from the lattice point. तो हम कहेंगे कि equal ion pairs are missing. So एक cation और एक anion क्या बनाएगा? Ion pair बनाएगा। Equal ion pairs are missing. Equal number of ion pairs are missing from lattice site. तो किसी भी lattice site से equal number of ion pairs are missing. Isn't it? In a Schottky defect. Schottky defect में अगर हम यहाँ पे आप इसके conclusions देखेंगे, you can see over here. मैं यहाँ पे इसके conclusions अब लिखूँगा। पहले इससे क्या क्या होता है। Let us first write what are the conditions for Schottky defect. अगर ये Schottky defect होता है तो condition क्या है? हम कौन से type of crystals में इसको observe करेंगे? What are the type of the crystals in which we can observe the Schottky defect? तो लेट अस सी कंडीशंस फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। तो पहले डिस्कस करेंगे कंडीशंस। तो शॉर्टकी डिफेक्ट आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। आपके पास कोई क्रिस्टल लाइट्स है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन्स एंड एनायन्स आर मिसिंग। सो व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशन नंबर फर्स्ट इज सिंस बोथ आयन्स आर मिसिंग देयरफॉर जो साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन होगा दैट शुड नॉट डिफर मच, दैट शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर। सो फर्स्ट कंडीशन इज साइज ऑफ कैटायन and size of anion, size of cation and size of anion should be almost of similar. Cation and anion should be almost of similar size, or size of cation and anion should be similar, should be almost similar, it should be almost similar. तो इनका साइज जो है दैट शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर। साइज का मतलब क्या है? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का मतलब क्या है? आर प्लस आर माइनस। तो सेकंड इज हमारे पास रेडियस रेशियो आर प्लस बाय आर माइनस। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द माय वीडियो ऑन रेडियस रेशियो you can click it, you can see lecture 05 of solid state where I have discussed everything about radius ratio. So Schottky defect is observed in those type of ionic compounds in which the radius ratio is approaching to unity, मतलब it is approximately equal to unity. रेडियस रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। तो रेडियस रेशियो में मैंने आपको बताया था, या तो ये यूनिटी का मतलब क्या है? इट शुड लाई बिटवीन 0.732 to 1 और इट शुड लाई 0.414 to 0.73। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर था? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था।
दिस इज BCC टाइप ऑफ लाइट्स। लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ इट शुड बी। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड इन दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन आ सकता है which have high coordination number 8 और coordination number 6। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल famous example is NaCl, एक famous example is CaCl because we know CaCl में coordination number 8 है, यहाँ पे coordination number 6 है, isn't it? So these are the conditions। आपको statement wise question देगा, which of the following statement is not correct, is incorrect regarding Schottky defect। तो आपसे पूछेगा size of cation and anion should be almost similar, this is correct। Radius ratio should be nearly equal to unity, this is correct। Coordination number should be high, this is correct। So साथ में देगा size of cation and anion should be very difference in size of cation and anion should be very large, or radius ratio should be very small, or coordination number should be very low। तो ये हमारे पास कंडीशंस बनती है। उसके बाद अगर कंडीशंस बन गई तो उसके बाद हम देखेंगे, कंडीशंस के बाद हम देखेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स, मतलब व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर शॉर्टकी डिफेक्ट किसी क्रिस्टल में हुआ तो उससे क्या होगा, अगर किसी क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। देखो ये जो मेरे पास क्रिस्टल है, दिस इज परफेक्टली ऑर्डर्ड, इजंट इट, दिस इज परफेक्टली ऑर्डर्ड। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, हियर यू कैन सी डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो थर्मोडायनामिक्स में आप इसको कैसे रिलेट करोगे, जहाँ पे ऑर्डर होता है वहाँ पे डेल एस लेस होता है, और जहाँ पे डिसऑर्डर होता है वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो हम कहेंगे बिकॉज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, del S of the crystal increases, del S of crystal increases, isn't it? So this is very simple, number second। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर डिफेक्ट नंबर ऑफ आयन गोज ऑन डिक्रीज। तो बेसिकली मास डिक्रीज होता है, यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, मास डिक्रीज होता है, देयरफॉर डेंसिटी विल आल्सो डिक्रीज। सो शॉर्टकी डिफेक्ट जब भी होगा तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। तो आप सेकंड लिखेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, बिकॉज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट एस डी, इजंट इट। तो नंबर थर्ड हमारे पास होगा, जब भी शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, देखो अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करूंगा, क्रिस्टल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट्स वाई द रेशियो इज मेंटेन। जो जितने पॉजिटिव आयन्स है उतने ही नेगेटिव आयन्स हैं, जितने पॉजिटिव आयन्स है उतने ही नेगेटिव आयन्स हैं। That's what is meant by electrical neutrality is maintained। तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जितने कैटायंस यहाँ से भाग जाते हैं उतने ही एनायंस यहाँ से भाग जाते हैं, isn't it? तो एक और बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे आयोनिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ आयन्स, तो आयोनिक कंडक्टेंस की बात करेंगे। आयोनिक कंडक्टेंस क्या होता है, जब आपके आयन्स मूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी आपके आयन्स मूव करने लगेंगे, यहाँ पे भी करने लगेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस है दैट इज लार्ज, मतलब जो आयन्स का मीन फ्री पाथ है, जहाँ से आयन्स आपके मूव करेंगे दैट इज लार्ज, मतलब जितना ज़्यादा टेंडेंसी आयन्स को मूव करने की यहाँ पे है उतनी यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर शॉर्टकी डिफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज वैकेंट स्पेस इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन्स। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल इंक्रीजेस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल इंक्रीजेस स्लाइटली, व्हाई स्लाइटली, बिकॉज बहुत कम जिस शॉर्टकी डिफेक्ट जो है बहुत कम होता है किसी भी क्रिस्टल में, इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल इंक्रीजेस, ऑफ अ क्रिस्टल इंक्रीजेस, अगर इसमें क्या होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। नंबर 4, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। आई होप कि शॉर्टकी डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, इजंट इट? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। आई होप कि शॉर्टकी डिफेक्ट आपको आया होगा। ये जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट्स फ्रैंकल डिफेक्ट। सो सेकंड वन इज और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, लेट अस सी फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है। मैं यहाँ पे एक क्रिस्टल बनाऊंगा सिमिलर टू दैट ऑफ आयोनिक क्रिस्टल A+,
B minus, A plus, B minus, B minus, A plus, B minus, A plus. This is a perfect ordered arrangement of the ions. A plus, B minus, A plus, B minus. Similarly over here I have B minus, A plus, B minus, A plus. So ये मेरे पास एक perfectly ordered arrangement of constituent particles in an ionic solid. Isn't it? This is before defect. अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट क्रिएट करना है. तो फ्रेंकल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है. उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपको पूरा अंडरस्टैंड कंसेप्ट हो जाए. सो देखो, दिस इज एन एटम. एटम्स आर, मैंने आपको कहा था दिस इज एन एटम, और ये जो स्पेस है दिस इज नोन एज, ये जो खाली स्पेस है दिस इज नोन एज वाइड, और इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन. इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल पोजीशन. तो मैंने आपको कहा था कि वाइड का साइज की अगर बात करेंगे, साइज ऑफ वाइड जो है इट इज लेस देन दैट ऑफ साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम. तो पीरियडिसिटी में आप जानते हो कि in 90% of the cases, 99% of the cases, size of cation मतलब cation means A plus over here is smaller than that of size of anion. साइज ऑफ anion. तो यहाँ से आपको अंदाजा लगेगा कि साइज ऑफ cation इज वेरी स्मॉल, मतलब इसका साइज स्मॉल है कंपेयर टू दैट ऑफ anion, और इस वाइड का साइज भी स्मॉल है. देयरफॉर आपका cation इस वाइड में जाएगा या anion जाएगा, थोड़ा समझो. अगर आपने सोचा कि cation इसमें जाएगा तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, बिकॉज इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज स्मॉल है, तो यहाँ से cation मूव करता है. cation इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइड, नॉर्मल लैटिस साइड से गायब हो जाता है, एंड इट ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइड, एंड इट ऑक्यूपाइज this void, isn't it? So what is Frankel defect? In Frankel defect what happens? An ion, तो कौन सा ion? Usually cation is missing from its normal lattice site, and occupies an interstitial site. So यहाँ से आपको अंदाजा होगा why cation is missing, because interstitial site जो है it's very very small in size. आपका anion यहाँ पे फिट नहीं होगा, that's why cation is missing. तो what will happen after the defect? Let us see. मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट है हमें पता है, फ्रेंकल डिफेक्ट है हमें मालूम पड़ गया कि क्या होता है. नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन आफ्टर द डिफेक्ट. जब डिफेक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमें? A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस. तो यहाँ पे B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस. तो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट हुआ है. अब हम इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इससे क्या होता है, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इजंट इट. तो व्हाट हैपेंस इन द शॉर्ट की डिफेक्ट? आपका cation नॉर्मल लैटिस से मूव करता है. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका cation गायब, तो अगर आपका cation गायब है कहाँ जाएगा? इफ द cation मूव्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइड, वेयर इट विल गो? तो cation क्रिस्टल से बाहर जाता, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, इसलिए ये जो cation यहाँ से गया, इट ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइड. फॉर एग्जांपल आपका cation यहाँ पे आ गया, दिस इज द इंटरस्टिशियल साइड. मतलब क्यों? बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उनको बैलेंस करना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, बिकॉज ओनली वन आयन इज मूविंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइड, one type of ion is moving from, not only one type of ion is moving from the normal lattice side. Therefore electrical neutrality को maintain करने के लिए it occupies this vacant side. मान लो कि यहाँ पे हमारा एक और cation मिस हुआ है, तो अगर ये cation मिस हुआ है, it will also occupy in Frankel defect, it will also occupy this interstitial position. Clear? तो अगर यहाँ पे देखोगे before defect, this is before defect. डिफेक्ट होने से पहले बताओ मुझे A प्लस आयन्स कितने हैं और B माइनस आयन्स कितने हैं. तो अगर आप ये सोचते हो कि A प्लस आयन्स यहाँ पे 8 है, यू आर करेक्ट. एंड अगर आप ये सोचते हो कि B माइनस आयन्स 8 है, यू आर करेक्ट. तो सिमिलरली अगर आफ्टर डिफेक्ट की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, A प्लस आयन्स कितने होंगे और B माइनस आयन्स कितने होंगे. अगर आप काउंट करोगे यू विल सी 8 A प्लस आयन्स, 8 B माइनस आयन्स.
So what will be the ratio? Ratio will be 1:1. What will be the ratio? Ratio will be 1:1. 1:1 का मतलब क्या है? 1:1 का मतलब है कि स्टैकियोमेट्री यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, कि केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे कांस्टेंट रहती है. That's why this type of defect is also included in the category of stoichiometric defect. क्लियर? आई होप ये बात आपको क्लियर हुई अब. तो यहाँ पे जो स्टैकियोमेट्री का रेशियो होगा दैट इज 1:1. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कंडीशन. इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है. तो देखो यहाँ पे आपका कैटाइन मूव करता है इनटू द वैकेंट साइट, एनाइन नहीं कर सकता है. व्हाई? बिकॉज एनाइन का साइज बड़ा है. देयरफॉर व्हाट शुड बी द साइज डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन? देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज. सो फर्स्ट कंडीशन इज difference in size of cation and anion should be large. Difference in size of cation and anion. Cation and anion should be large. It should be large. नंबर सेकंड पॉइंट, वहाँ पे रेडियस रेशियो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था. यहाँ पे रेडियस रेशियो r प्लस डिवाइड बाई r माइनस शुड बी लो. अब बताओ मुझे क्यों लो होना चाहिए? इट शुड बी लो. अब बताओ मुझे क्यों लो होना चाहिए? बिकॉज r प्लस का जो साइज है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. तो स्मॉल को अगर यहाँ से डिवाइड करोगे यू विल गेट वेरी लीस्ट नंबर. मतलब इट शुड लाई इन द रेंज ऑफ 0.225 to 0.414 और इट शुड लाई इन द रेंज ऑफ 0.155 to 0.225. तो बेसिकली इस चीज़ को मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया. नंबर थर्ड कंडीशन, व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? तो थर्ड कंडीशन क्या बनती है? पता, अगर आपके पास ये रेडियस रेशियो है देन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. अगर ये है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3. मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो. कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो. लो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 4 या 3. तो इसकी एग्जाम्पल जो हमारे पास आएगी दैट इज जिंक सल्फाइड. तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखना है जो आपकी टेक्स्ट में दिया गया है, उससे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. तो टेक्स्ट में एक एग्जाम्पल दी गई है, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड. आई थिंक इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर क्लोराइड. दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर ब्रोमाइड की एग्जाम्पल है. तो आई चेक इट लेटर. सिल्वर ब्रोमाइड की एग्जाम्पल है. दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड एक चमत्कारी कंपाउंड है. इसकी एक खसूसियत है. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड की एक खास प्रॉपर्टी है. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? अगर हम उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज कि एक कंपाउंड इट शोज बोथ शॉर्ट की डिफेक्ट है, इट शोज बोथ शॉर्ट की डिफेक्ट है एंड इट शोज फ्रैंकल डिफेक्ट. तो ये दोनों डिफेक्ट डिस्कस मतलब शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट. तो ये चमत्कारी कंपाउंड डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है. पता मुझे यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई ना? लेट मी नो कि यहाँ तक आप सबको बात क्लियर हो गई. आई होप कि यहाँ तक अगर आप सोचते हो कि ऐसा होता है तो यहाँ तक आप सबको बात क्लियर हो गई. Isn't it? तो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट. दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो.